سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر شجل انعام ایمن نے کہا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل جاری ہے۔ K4 منصوبہ انہی وعدوں کا تسلسل ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عزیز بھٹی پارک سے اردو یونیورسٹی تک پانی کی پائپ لائن بچھانے کا مقصد طویل المدتی سہولت فراہم کرنا ہے۔ شرجیل میمن نے تسلیم کیا کہ وقتی طور پر ٹریفک کی مشکلات ضرور ہیں، مگر یہ مشکلات مستقبل کے مستقل حل کی طرف پیش رفت ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ K4 ریڈ لائن اور دیگر منصوبے سندھ حکومت کے ویژن کا حصہ ہے، جس کا مقصد کراچی کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا ہے۔ K4 منصوبے کے سلسلے میں لائنیں بچھانے کا کام مسلسل تیسرے روز بھی جاری ہے۔ عملے کو دوران کھدائی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مشکلات درپیش ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کراچی میں پانی کی کمی کا حل قریب۔ K4 منصوبے کی لائنیں بچھانے کا کام مسلسل تیسرے روز جاری۔ K4 منصوبے کے تحت یونیورسٹی روڈ پر لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، تاہم سر سید یونیورسٹی تا وفاقی اردو یونیورسٹی پہلے فیز میں 30 میٹر کی کھدائی کے دوران عملے کو لینڈ سلائیڈنگ کا سامنا ہے۔ پرابلمس یہ آ رہی ہے کہ جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا ہے تو یہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے مٹی کی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے۔ یہ بس تھوڑا سا کام ہے، یہ جیسے ہی پراپر شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پائپ ڈالیں گے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروس امپروومنٹ پروگرام کے عملے نے بتایا کہ کام کو بروقت مکمل کرنے کے لیے پہلے زیر زمین انفراسٹرکچر کا سروے کیا گیا تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ کام ابھی شروع ہوا ہے بالکل، تو اس میں پیچیدگیاں آتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بس تھوڑا سا یہ کام رہتا ہے۔ K4 پروجیکٹ کے پہلے فیز کی تکمیل سے شہر کو یومیہ بنیاد پر 260 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے گا، جس کی تکمیل کی مدت سال 2026 بتائی جاتی ہے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 24۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کوسٹل ہائی وے کو جون 2027 میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزراء جام خان شورو، علی حسن زرداری، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین P&D نجم شاہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں وفاقی PSDP 2025-26، ADP 2025-26 اور منظوری کے مراحل میں نئی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جاری ہے اور 3.7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ کام کی رفتار تیز کر کے جون 2027 تک کوسٹل ہائی وے منصوبہ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا روہڑی تا گڈو بیراج سڑک 105 کلومیٹر کی لاگت 1779.36 ملین روپے کی اسکیم ہے۔ سڑک M5 انٹرچینج صادق آباد تا خانپور مہر، میرپور ماتھیلو اور مری شیخ روڈ بن رہا ہے۔ روہڑی تا گڈو بیراج روڈ پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ جون 2027 تک روہڑی تا گڈو بیراج سڑک کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹنڈو الہیات تا ٹنڈو آدم سڑک کی ڈائیولائزیشن 31.4 کلومیٹر کی 92,884.584 ملین روپے کی اسکیم ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر بھتہ مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ سکھن تھانے کی حدود بھینس کالونی میں باڑے کے مالکان کو بھتہ کی کالز موصول ہونا شروع ہو گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے، تاہم کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ کراچی کے تاجروں پر گینگ وار کے بعد کچے کے ڈاکوؤں کا خوف منڈلانے لگا۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں کچے کے ڈاکو بھتہ طلب کرنے کے لیے تاجروں کے گھر اور باڑوں پر فائرنگ کرنے لگے۔ ڈسٹرکٹ ملیر کے سکھن تھانے کی حدود بحث کالونی میں 15 دن میں بھتے کے 3 واقعات بھی رونما ہوئے۔ 1 اکتوبر کو بھتہ خوروں کی طرف سے تاجر کو بھتے کی کال موصول ہوئی، دھمکاتے ہوئے 25 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا۔ ملزم نے کال پر مدعی کو بتایا کہ وہ 20 بندوں سے بھتہ وصول کر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق تمام واقعات کے حوالے سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ نیشنل ہائی وے گلشن حدید کے قریب مقامی ہوٹل پر ڈاکوؤں کا دھاوا۔ ہوٹل مالکان سے ڈکیت 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد نیشنل ہائی وے پر متاثرین کا احتجاج۔ ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی پر
मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुबशिर हुसैन की ये रिपोर्ट। डाकुओं की दीदा दिलेरी, दिन दिहाड़े मकामी रेस्टोरेंट पर डाकुओं का धावा, मिनटों में होटल मालिकान को करोड़ों रुपए से महरूम कर दिया गया। होटल मालिक के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब 3 मुसल्ला मुलजिमान होटल में दाखिल हुए। पहले खाना खाया और कुछ देर बाद असला निकालकर ग्राहकों और अमले को यरगवाल बना लिया। मुलजिमान 1 करोड़ रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन्स लूटकर बासानी फरार हो गए, जिस पर शहरियों और मुतासरा होटल मालिकान ने एहतजाज करते हुए नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। ये आए हैं जी, पहले इन्होंने खाना वगैरह खाया है, 1350 रुपये का इनका बिल बना है और काफ़ी देर मतलब बैठे रहे हैं जैसे गाहक बैठता है। और फिर जब बिल देने की बारी मतलब काउंटर पे आए हैं और वेटर ने आवाज़ मारी है कि भाई 1350 ले, वो सीधे सीधे अंदर आ गए पिस्टल लेके और दराज में से पैसे वगैरह निकाले और फिर उसके बाद डराया धमकाया और फिर बिठा दिया मुझे कि इधर बैठ जा, आगे पीछे नहीं जाना। 2 लड़के उनके साथ और थे, 3 बंदे थे टोटल। होटल पर खाना खाने आने वालों का कहना था कि 3 मुसल्ला मुलजिमान आए, उन्होंने खाना खाया और फिर एक के बाद दीगर ग्राहकों और होटल की तिजोरी का सफाया कर दिया। मलीर की हदूद में वारदातें होना रोज का मामूल बन गई हैं। पुलिस को इलाके में गश्त बढ़ाना होगा ताकि कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल हो सके। आगे एक बार खड़े थे, 2 अंदर थे। जब अंदर मैंने देखा यार ये बंदूक पिस्टल इसके साथ है, ये चोर है क्या है, थोड़ा सा 2-3 मिनट मैंने देख लिया। इसके बाद भाई को निकाल दिए, दखल मखल चेक किया, यहाँ से मोबाइल सब पैसे मैसे किराया मेरा सब लेके गया। दिन दिहाड़े 2 बजे इस होटल पे वाक़या हुआ है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस हवाले से मैं आईजी सिंध को एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपने पुलिस को कंट्रोल करो और ये क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए बराए मेहरबानी अपने सिंध और सिंध वासियों का साथ दें। पुलिस का मौक़िफ़ है कि वारदात की दरखास्त मौसूल हो गई है। CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। मुलजिमान को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अब SHO साहब आए हैं हमारे पास 2 घंटे के बाद, 2 घंटे जो है रोड वो बंद रहा है। SHO स्टील ने आके कि दावा किया कि हम जल्द से जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कोई खासा में रिपोर्ट नहीं किया गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। होटल मालिकान ने आला हुक्काम से अपील की कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके लूटी गई रकम और मोबाइल फोन्स बरामद किए जाएं। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा मुबशिर हुसैन 20। मरीज मर गया, 3 लाख का बिल क्यों दें? डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल मैदान जंग बन गया। सिक्योरिटी गार्ड्स और लवाहिकीन के एक दूसरे पर लातों और घूंसों से वार, लोग वीडियोस बनाते रहे। लवाहिकीन बिल दिए बगैर लाश जबरदस्ती ले गए। आपको बताएं इस हवाले से कि मरीज मर गया और 3 लाख का बिल क्यों दे, मजीद बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ये डाउ अस्पताल है जो कि सफूरा कोट में, जहां पर एक शख्स को यहाँ पे दाखिल कराया गया था जिसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी हालत भी तशवीशनाक थी, जिसको यहाँ पे अस्पताल की इंतजामिया ने उनके तीमारदारों के कहने पे दाखिल किया और उनको तफसील से आगाह भी कर दिया था और ऑपरेशन भी कर दिया गया था। लेकिन तकरीबन 48 घंटों के दौरान मरीज जो है वो इंतकाल कर गया, जिसके बाद लवाहिकीन ने वहाँ पे शदीद गुस्से का इजहार किया, शोर शराबा किया और अपने लाश को लेकर जबरदस्ती वहां से जाने लगे। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया ने कहा कि जब तक 3 लाख रुपए का बिल, इससे भी ज्यादा बिल बनता है, वो जब तक अदा नहीं करेंगे उनको लाश नहीं लेके जाने दिया जाएगा। इस दौरान तलख कलामी हुई तो तीमारदारों ने अपने लोगों को तलब कर लिया, अपने रिश्तेदारों को, जबकि अस्पताल की इंतजामिया ने सिक्योरिटी तलब कर ली। इस दौरान दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड और दर्जनों लवाहिकीन आपस में गुत्तम-गत्ता हो गए, एक दूसरे को लातें मारी, एक दूसरे को मुक्के मारे और लाश को वार्ड से बेड पर मुंतकिल करके उसको जबरदस्ती वहां से लेके जाने लगे, जहां पर अस्पताल के मेन गेट तक जो है वो मैदान जंग बना रहा डाउ यूनिवर्सिटी। इस दौरान लोगों ने वहां पे वीडियो बनाते रहे, जबकि दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अस्पताल के मरकजी गेट को बंद कर दिया था। लेकिन लवाहिकीन की तादाद भी ज्यादा होने की वजह से मरकजी गेट को जबरदस्ती खोला गया और इस दौरान जो मुतअद्दिद सिक्योरिटी गार्ड जो वो बैरियर पर भी गिरे, जिनमें से
8 से 10 जो सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए, इसी तरह तीमारदार भी जख्मी हुए। लेकिन जो तीमारदार थे वो अपने प्यारे की लाश लेकर वहाँ पे फौरी तौर पर जो एम्बुलेंस लेकर आए थे उसके अंदर मुंतकिल करके फौरी तौर पर वहाँ से रफू चक्कू हो गए। जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको तकते रह गए और इस दौरान जो है वहाँ पे शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया गया तीमारदारों की जानिब से। जबकि जो दीगर अफराद थे वो भी शदीद वहाँ पे खौफजदा हो गए थे और इस दौरान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड असला भी लेकर पहुंचे, लेकिन वहाँ पे कोई फायरिंग का वाकया पेश नहीं आया। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अस्पताल के अंदर इतना बड़ा वाकया हो गया। इस हवाले से अस्पताल के तर्जमान जो है उनका कहना है कि डाउ यूनिवर्सिटी की अस्पताल की जो इंतजामिया है वो इस हवाले से कानूनी हक रखती है और इस हवाले से शफाफ तहकीकात भी की जा रही हैं और CCTV फुटेज के हवाले से भी मदद ली जा रही है और जो रिश्तेदार थे, जो तीमारदार थे जिनकी लाश थी, उनके हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी मदद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी। न्यू कराची में ग्रीन बस ब्रिज के नीचे कायम तजावुज़ात का खात्मा। कार्रवाई के दौरान सामान जब्त। 2 हफ्तों के दौरान सड़क किनारे 255 चायखाने और होटल्स सील कर दिए गए। कराची इंतजामिया ने इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जिला वस्ती में 78 होटल्स बंद, कुरंगे में 72, शर्की में 60 चायखाने सील, जनूबी में 33, गरीबी में 4, किमाड़ी में 7 होटल्स सरबे मोहर। कमिश्नर कराची के मुताबिक कार्रवाई का मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। कराची में ई चालान का सिलसिला जारी। सिर्फ 12 घंटों में 1200 से ज्यादा चालान कर दिए गए। DIG ट्रैफिक के दफ्तर में कायम मॉनिटरिंग रूम में शहर की अहम शाहराहों पर रमादमा ट्रैफिक की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। 12 घंटों के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1200 से ज्यादा चालान कर दिए गए, जिनमें 9 सरकारी गाड़ियों के चालान भी किए गए। सरकारी गाड़ियों में 2 पुलिस मोबाइल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक को भी 42 चालान जारी किए गए। हैवी ट्रैफिक में डंपर्स, ट्रक, ऑयल टैंकर्स वगैरह शामिल हैं। एक खिलाफ वर्जी, 2 चालान, तस्वीर एक, वक्त अलग अलग। ई चालान बना अवाम का नया इम्तिहान। सोराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे पर 2 चालान, तस्वीर एक, वक्त मुख्तलिफ। शहरी ने सर पकड़ लिया। एक दिन एक खिलाफ वर्जी, 2 जुर्माने क्यों? शहरी सरापा सवाल। गलती सिस्टम की सजा हमें क्यों? शहरी का शिकवा। ई चालान सिस्टम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरी हो जाएं होशियार, खबरदार। शाहराह फैसल पर स्पीड लिमिट के बोर्ड आवेजा कर दिए गए। ओवर स्पीडिंग करने वालों को चालान भुगतना होंगे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इकदामात जारी हैं। इस हवाले से शाहराह फैसल पर स्पीड लिमिट बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। शाहराह फैसल पर 18 मकामात पर लगाए गए हैं। शाहराह फैसल पर हैवी ट्रैफिक की स्पीड 30 और आम गाड़ियों और बाइक्स की स्पीड 60 रखने की हिदायत है। DSP ट्रैफिक एडमिन काशिफ नदीम के मुताबिक मुख्तलिफ शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बना दी गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के जबरी बरतरफ मुलाजमीन के एहतजाज पर थाना स्टील टाउन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR स्टील मिल्स के सिक्योरिटी एहलकार मुनीर की मुद्दत में दर्ज हुई। मुलाजमीन ने गेस्ट हाउस के सामने ताले लगाकर एहतजाज किया और स्टील मिल्स के CEO को बाहर आने से रोका। इस दौरान असद इस्लाम माहनी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। FIR में और ट्रेड यूनियन अलायंस के डिप्टी कन्वीनर धनी बख्श सम्मू समेत सियासी रहनुमाओं और 40 से ज्यादा नामालूम अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबरी बरतरफ मुलाजमीन ने 15 घंटे से ज्यादा गेस्ट हाउस के सामने धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने शेलिंग करके धरना खत्म करा दिया। प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराव का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बायस फवारा चौक और प्रेस क्लब रोड की ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। आपको बताएं कि प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराव का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी। एहतजाज के बायस फवारा चौक और प्रेस क्लब रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बल्दिया उस्मा इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि मलीद, मेमन गोट और खालिद बिन वलीद रोड पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। जाम सादिक पुल का मुतबादिल रास्ता बनाने से मुतालिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। मलीर में कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। बहुत सी स्कीमें काम
जारी है। जैसा कि अभी विज़िट भी मैंने की है, एक रोड बन रहा है मेमन गोड्स मली पीडी से मेमन गोड तक रोड बन रहा है, उसकी कारपेटिंग का काम शुरू हो चुका है और 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें ये कि पैदल चलने के लिए भी ट्रैकिंग वॉक दिया हुआ है उस रोड के ऊपर, लोग वहाँ से पैदल भी चल सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं। मलीर में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद इंतजामी नाअहली का शिकार हो चुका है। अस्पताल में ना स्ट्रेचर हैं ना ही ज़रूरी अद्वियात, जिसके बायस मरीज और उनके अहल खाना सख्त परेशानी का शिकार हैं। इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मुश्किलात का मरकज बन गया, मरीज बेयारो मददगार। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में इलाज के बजाय मुश्किलात मरीजों का इंतजार कर रही हैं। ना स्ट्रेचर ना अद्वियात, मरीजों और उनके अहले खाना ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अभी तक ना स्ट्रेचर है, यहाँ कुछ है, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ रक्षा नहीं खड़ा करना, यहाँ नहीं करना। अबे भाई कहाँ जाए? और स्ट्रेचर के लिए बैठे हुए अभी स्ट्रेचर के लिए बैठे हुए थे। जनरेटर चलाया था इन्होंने, फिर बंद कर दिया। पंखे वंखे नहीं चले थे, आधा घंटा हो गया यहाँ पंखा कुछ भी नहीं चल रहा। कितनी गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही है यहाँ, बहुत हो रही है गर्मी। नहीं है, वो भी अंकल ने दी थी बेचारों ने, वो ले ली उन्होंने वापस। बोले अब कैसे जाएंगे इतना दूर तक? अभी देखिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाइक लेके आ रही है, देखें ले आया, फिर बाइक में वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तो खेल दूज खेलते हुए चले आएंगे। MS डॉक्टर मोहम्मद आगा आमिर का कहना है कि अस्पताल में व्हीलचेयर और अद्वियात दस्तयाब हैं। कुछ अद्वियात की किल्लत ज़रूर थी जिसे पूरा किया जा रहा है। MS के मुताबिक अस्पताल में पानी और गैस की कमी जैसे मसाइल भी दरपेश हैं, जिन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मरीजों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। अभी जो है अद्वियात आने शुरू हुई है, अभी सप्लाई शुरू हुई है। थोड़ा लेट हो गए थे, किसी मामलात है, तो अब तो माशाल्लाह अद्वियात भी आ रही हैं। और सेक्रेटरी साहब ने ये भी कहा है कि हम आपको जो HR की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो भी पूरी कर देंगे। डॉक्टर मोहम्मद आगा आमिर का कहना था कि डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुतासिरा मरीजों का इलाज जारी है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मौशी अदादो शुमार में बेहतरी की तवक्कुआत के बाद इंडेक्स में बेहतरी नजर आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंगल के रोज कारोबार मुस्बत रुझान के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,58,183 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दिन भर के दौरान मार्केट में बुलंद तरीन सतह 1,59,516 जबकि कम तरीन सतह 1,57,203 पॉइंट्स रही। मार्केट में 480 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 188 कंपनियों के शेयर्स में तेजी और 235 में मंदी, जबकि 57 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। कारोबारी हजम के लिहाज से मजमूई तौर पर 75 करोड़ से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ, जिनकी मालियत 33 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रही। मार्केट के तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी के मुताबिक रुझान और मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी की तवक्कुआत के बायस इंडेक्स में बेहतरी देखने में आई। सोने की कीमत में कमी हो गई। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,34,762 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 81 रुपये इजाफे से 5,434 रुपये पर पहुंच गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $10 कमी से $4,124 फी औंस पर आ गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ और इसी के साथ 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,34,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी से 3,02,738 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 81 रुपये इजाफे से 5,434 रुपये पर पहुंच गई।